जिंदाबाद 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 SFI जिंदाबाद 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 കണ്ടോടാ ഇത് കണ്ടോടാ കണ്ടോടാ ഈ കണ്ടോടാ ANUവിൻ ചെമ്പടാ അഭിമന്യുവിൻ ചെമ്പടാ കണ്ണേ കരളെ അഭിമന്യു നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെ റോസാപ്പൂവേ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെ റോസാപ്പൂവേ ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കുന്നില്ല സാക്ഷി മരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ചോരയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ചോരയിലൂടെ സാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് സാക്ഷികൾ അമരന്മാർ അമരന്മാർ അവർ ധീരന്മാർ അമരന്മാർ അവർ ധീരന്മാർ ധീരന്മാരുടെ ചേതനയോടെ അതാണ് നമ്മുടെ ചങ്കൂറ്റം ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് जिंदाबाद Comrades, it is believed that campus spaces, the walls of the campus, they speak, that they are publishers of the poor. They speak the voice of dissent. They speak the voice of the marginalized section of the society who continue to be oppressed every day by fascist forces, by fundamentalist forces. And these walls are a reminder to these very forces every time they pass by them that we aren't tired. And we shall never be in fighting against them every day of our lives. Because we walk on the path given to us by our martyrs. It is a reminder to them to believe in their defeat. Because we shall not stutter unless we achieve a world that we dream for. Like all activists of SFI, it was a dream of our comrade Abhimanyu. In the words of Maharajas, when campus front fundamentalists, when their goons went and wrote their communal agenda on the walls, our comrade didn't flinch for a second when he wrote over it that SFI shall not tolerate any sort of religious fundamentalists in our campus spaces. He wrote loud and clear, he spelled it out loud and clear for them that death to communalism. Comrades, the same night, they pierced a dagger into the heart of our comrade. And that dagger pierced not just one individual of SFI, that pierced the entire activists of SFI across this country, that pierced every student who come from a marginalized section in the society, who fought every day to achieve education, who fought every day against these very forces who killed them. But these forces need to be reminded that they cannot kill any activist of SFI. Our activists live every day in our struggle. I still remember the day I joined JNU, the same year, during the largest victory of the Left United panel in this campus resonated with slogans of Comrade Abhimanyu. Students of this campus wore t-shirts of his smiling face. And that is the legacy. That is the legacy of our comrades that we carry forward. We shall remember him in our victory. We shall remember him every day we are on the street fighting the very forces who killed him. And very importantly, we shall remember him on those days when hope seems dim, when our bodies are tired. We shall remember how he taught us that we shall not stutter when we scream in front of these very forces that death to communalism. I welcome you all on behalf of SFI JNU to this event where we remember our dear comrade, where we remember Comrade Abhimanyu, who fought in the front against campus front forces, against all sorts of religious fundamentalism. And I invite Comrade Harinder, President of SFI JNU, to keep his word. लाल सलाम कॉमरेड्स चेगवारा ने एक बार एक बात बोली थी कि लोग उसे बोलते हैं कि मैं साहसी हूं, और वो साहसी था भी, लेकिन एक अलग प्रकार का। वो मानता था कि सच्चाई के लिए लड़ने के लिए अगर मुझे अपनी त्वचा को भी जोखिम में डालना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और कुछ वर्षों बाद में जब उसकी जन्मभूमि से लोगों ने ये कहानी सुनी कि कैसे बोलिवियन आर्मी ने
उसको एक अननोन कब्र में मार के दफना दिया गया था, तब उन लोगों ने एक साथ एक स्वर में एक स्लोगन दिया था कि एक इंसान को तुम मार सकते हो लेकिन पराजित नहीं कर सकते। अभिमन्यु को चेगवारा नहीं था, ना ही वो चेगवारा जितनी उम्र उसने जिया, वो कम से कम 2 दशक पहले उसको मार दिया गया। लेकिन आज से 3 साल पहले जब 2 जुलाई 2018 को अभिमन्यु की अंतिम विदाई हो रही थी, तो उसके जानने वाले, उसके साथियों ने वही एक सुर में वो सवाल लगाया था कि किसी इंसान को तुम मिटा सकते हो लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकते। कॉमरेड अभिमन्यु महाराजा कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टूडेंट था और कैंपस के अंदर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने, जो सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे, 20 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी अभिमन्यु की? अभिमन्यु ने कैंपस में नए स्टूडेंट्स आने वाले थे, फ्रेशर्स, उसके लिए एसएफआई ने एक वॉल दीवार को बुक किया था ताकि उनका स्वागत कर सके, उस पर कुछ स्लोगन्स लिख सके, उस पर कुछ पोस्टर्स चिपका सके। लेकिन जो सीएफआई के लोगों ने उस दीवार को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, उस पर कुछ चीजें लिख दी। कॉमरेड अभिमन्यु ने उस पर एक शब्द लिखा था, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद। कॉमरेड अभिमन्यु को सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाने पे मार दिया गया। और हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें कैंपस में स्टूडेंट्स को एक ऐसी नस्ल को पैदा करना चाहती है जो धर्म के नाम पे किसी की भी जान ले सके और किसी को, मतलब किसी के लिए मर भी सके। ऐसी ताकतों को जब तक कॉमरेड अभिमन्यु जैसे जाबाज कॉमरेड कैंपसेस में प्रेजेंट रहेंगे, एसएफआई कैंपसेस में प्रेजेंट रहेगा, ऐसी ताकतें, ऐसी धर्म कट्टरपंथी ताकतें बिल्कुल कैंपसेस के अंदर अपने पैर नहीं पसार सकती है। आजाद भारत का एक सपना था कि हमें धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रवादी संविधान का निर्माण किया हमने, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रेजेंस में ये निर्माण हुआ संविधान का। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब से आरएसएस बीजेपी ने एक मकसद लिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तब से इन लोगों का केवल और केवल एक ही दुश्मन बन जाता है आगे, वो है देश का संविधान। एसएफआई के कॉमरेड अभिमन्यु, हम सब की यही लड़ाई थी कि देश के संविधान को बचाना। और जब आज हम देखते हैं कि इस कैंपस में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही है, और ये दिन प्रतिदिन ये चीजें हम देख रहे हैं कि किस वे में इन चीजों को बढ़ाया जाता है, कैसे कैंपसेस के अंदर एक पर्टिकुलर धर्म को लेके नारे लगाए जाते हैं। अभी हमने रिसेंट में देखा कि जेएनयूएसयू का जो यूनियन ऑफिस है, उसमें कैसे एक धर्म को लेकर नारे लिखे गए। इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। जब हम देख रहे हैं कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, कैसे एक एक्सट्रीमिज्म को उसमें दिखाया गया है, कैसे एक एक्सट्रीमिज्म को सिलेबस में डाला गया है। हम मानते हैं कि सब प्रकार का एक्सट्रीमिज्म मानवता के लिए हानिकारक है, और इसी चीज को अगर हम देखें, सरकार कैसे इस चीज में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में मदद कर रही है। जब देश एक कोविड की स्थिति से गुजर रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि सरकार का सबसे पहला दायित्व है लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना, लेकिन सरकार इस कोविड की आड़ में, इस पेंडेमिक की आड़ में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। और हम देख रहे हैं कि कैसे कोविड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके ये फैलाया गया कि कैसे कोविड स्प्रेड किया जाता है। कॉमरेड्स, आज हमारी लड़ाई इन चीजों से है, और कॉमरेड अभिमन्यु ने उस लड़ाई को स्टार्ट किया था, और हम सब आज ये प्रण लेते हैं कि कॉमरेड अभिमन्यु की लड़ाई को हमें आगे लेके जाना है और इन सारी सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करना है। Comrades, now I invite Comrade Aishir Ghosh, President of JNUSU and State Committee member of SFI to keep forward. Revolutionary greetings, first of all to comrades who are present here. आप जो भी यहाँ पे मौजूद है, आज जब हम कॉमरेड अभिमन्यु के साथ साथ हमारे आसाम में जो भी कॉमरेड शहीद हुए हैं, मार्टियर हुए, उनको भी याद कर रहे हैं आज के दिन में। और कॉमरेड अभिमन्यु हैज शोन अस कि जो बार बार बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि आप एक इंसान को मार सकते हो, लेकिन इंसान का जो विचारधारा है आप उसको कुचल नहीं सकते। हमने इस यूनिवर्सिटी में, अगर पहली बात इस यूनिवर्सिटी में शुरू हो, तो हमने देखा है कि किस तरीके से धर्म के नाम पे धीरे धीरे स्टूडेंट्स को एक राजनीति के तौर ढकेला जा रहा है। जब इस यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एकेडमिक क्वालिटी की बात करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की बात करने की जरूरत है। एक यूनिवर्सिटी जो सेक्युलर रहने की जरूरत है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कट्टरपंथी जो छात्र संगठन है वो धीरे धीरे
यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो विष लोगों के मन में फैलाया जाए, जिससे कैंपस स्पेसेस में अब अपने आप को छात्र के तौर में नहीं, लेकिन अपने आप को एक धर्म की आइडेंटिटी से देखिए। और यहीं पे हमारा लड़ाई है, यहीं पे एसएफआई का लड़ाई है, जब हमारा जो संगठन है वो सामने से लड़ता है और सामने से इस सेक्युलर एथोस को प्रोटेक्ट करता है। कॉमरेड अभिमन्यु केरल के एर्नाकुलम में जो महाराजास कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं 2018 के दिसंबर में गई थी, और वो वॉल जिसमें कॉमरेड अभिमन्यु ने ये लिखा था कि डेथ टू कम्युनलिज्म, उन्होंने क्यों लिखा था कि केरल के उस कॉलेज में पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जो गुंडे थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि एसएफआई जैसे संगठन को कैसे बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि एसएफआई सेक्युलर इथोस की बात कर रहा था, क्योंकि एसएफआई ये बोल रहा था कि छात्रों को यूनाइट करने के लिए छात्रों की हकों की बात करनी है, और उसमें धर्म के नाम पे आप यूनाइट नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे कट्टरपंथी भावनाओं से आप स्टूडेंट को यूनाइट नहीं कर सकते। और कभी कॉमरेड अभिमन्यु ने ये बात जब उस दीवार पे लिखा तो कॉमरेड अभिमन्यु को उन्होंने थ्रेटन करके उसके बाद मार दिया। कॉमरेड अभिमन्यु आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका जो स्ट्रगल है वो आज हर एक कैंपस में गूंज रही है। कॉमरेड अभिमन्यु को हम लोग खो चुके हैं, लेकिन कॉमरेड अभिमन्यु की जो स्ट्रगल है, उनकी जो यादें हैं, उसको हम खोए नहीं है। और लाखों लाखों कॉमरेड अभिमन्यु कैंपसेस में से निकल रहे हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि डेथ टू कम्युनलिज्म हैज टू बी द स्लोगन ऑफ एवरी कैंपस। वी हैव टू एंश्योर दैट नन ऑफ द रिलीजियस फंडामेंटल फोर्सेस विल रूइन आवर कैंपसेस। और यही नारा हर एक कैंपस में हमें आने वाले समय में इसको एकदम पुरजोर तरीके से, एक बैरिकेड के तरीके से हम इस कैंपसेस को सेफगार्ड करना है। और आने वाले समय में जिस तरीके से राइट विंग फोर्सेस और फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस फोर्सेस इस पूरी दुनिया में और साथ साथ इस देश के अंदर हावी हो रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो हर चीज को इस पैंडेमिक के समय में रिलीजियन के साथ जोड़ दिया गया है। किस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार इस देश के अंदर एक माइनॉरिटी सेक्शन को एकदम विलीफाई करके उसके नाम पे राजनीति किया जा रहा है। किस तरीके से एक जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको टारगेट किया जा रहा है, उनके लोगों पे यूएपीए लगाया जा रहा है, छात्रों को उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पैंडेमिक के समय में जो आगे पहले वाले साथी बोल के आए कि उसके नाम पे पूरे देश में फैलाया गया, ये मीडिया ने फैलाया कि कोविड हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रिलीजियस गैदरिंग हुए। इन सारे रिलीजियस गैदरिंग को अनसाइंटिफिक नहीं बोला गया, इन सारे रिलीजियस गैदरिंग को बोला नहीं गया कि स्प्रेडर है ऑफ द कोविड-19 वायरस। तो हम लोगों को समझना है आज के समय पे कि क्या ये जो सरकार है या उसके साथ जो ताकतें हैं वो क्या साइंटिफिक एथोस हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर या हमारे कैंपसेस के अंदर फैलाना चाह रहा है, या वो की बार बार कोशिश कर रहा है कि धर्म और जात के नाम पे हम लोगों को बांटा जाए। और यहीं पे हमारी राजनीति है, यहीं पे हमारी पॉलिटिक्स है, जहाँ पे कॉमरेड अभिमन्यु जैसे कॉमरेड्स जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो उठ के बहुत स्ट्रगल के बाद कैंपसेस पहुंच पाते हैं पढ़ाई के लिए, उनके सपनों को, उनके जो आशाएं हैं उसको खत्म कर दिया जाता है। आज के समय में भी इस कैंपस में देख रहे हैं जिस तरीके से कट्टरपंथी बढ़ रहा है धर्म के नाम पे, और जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीति बढ़ रहा है। कैंपस में जो पिछले तबके के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हक की बातें हैं, उनकी जो राइट्स है, उनकी जो लड़ाई है, उसको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जा रहा है। हम बार बार देख रहे हैं इस कैंपस के अंदर किस तरीके से, अगर बात किया जाए इस वाइस चांसलर आने के बाद से, किस तरीके से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को टारगेट किया गया है। आज के समय जब इस साबरमती धाबा में हम लोग खड़े हैं, हम नजीब अहमद को नहीं भूल सकते हैं। हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से एक लड़के को पीट के एबीवीपी के गुंडों ने उसको गायब कर दिया, और आज के समय में भी सरकार उसके साथ है, स्टेट मशीनरी एबीवीपी के साथ है। हम भूल नहीं सकते हैं कि 5 जनवरी इस जगह में क्या हुआ था, किस तरीके से हमारे कैंपस के डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक स्पेसेस को हर दिन खाया जा रहा है। आज जब हम ये इवेंट कर रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इस कैंपस के बाहर सफर कर रहे हैं, वो एक रिसीविंग एंड में है, जब उनके पास डिजिटल डिवाइड का वो लोग शिकार है। ये सरकार इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा, ये प्रशासन इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बार बार हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। हमारी लड़ाई आने वाले समय में होना चाहिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो डिविजिव पॉलिसीज है, इसको खत्म करते हुए हम लोग यूनाइट होके प्रोग्रेसिव विचारधारा की तरफ जाए। और हमारे कैंपसेस जिस तरीके से प्रोग्रेसिव विचारधारा के लिए जाना जाता था, एक मॉडल
हुआ करता था, इस कैंपस सारे कैंपसेस के लिए नहीं, देश के लिए, इस दुनिया के लिए, उस कैंपस को हम लोग लड़के फिर से वापस इस देश के अंदर खड़ा करें कि जेएनयू जैसे कैंपसेस या प्रोग्रेसिव सारे एजुकेशनल कैंपसेस कभी रिलीजियस ताकते या फंडामेंटलिज्म के लिए नहीं खड़ा होगा, लेकिन ऐसे कैंपसेस लोगों की साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, जो पिछले तबके से स्टूडेंट्स आते हैं, जो महिलाएं आते हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन के स्टूडेंट आते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ इस समाज को बदलना चाहते हैं प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, उनके लिए यूनिवर्सिटी स्पेसेस बचा रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी और कॉमरेड अभिमन्यु को याद करते हुए हम लोगों को जो प्रण भी लेना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे कैंपस जो स्पेसेस है उसको हम लोग पुरजोर तरीके से इस फंडामेंटली रिलीजियस फोर्सेस साथ साथ राइट विंग फोर्सेस के खिलाफ एक बैरिकेड तैयार करके इनसे उसको प्रोटेक्ट करें। यही बोलते हुए और एक बार कॉमरेड अभिमन्यु को सलाम पेश करते हुए मैं अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड अभिमन्यु जिंदाबाद। कमरेड अभिमन्यु लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कमरेड अभिमन्यु लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अभिमन्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अभिमन्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आईएसएफ जिंदाबाद, 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 आईएसएफ जिंदाबाद, 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 इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, 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 इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभिमन्यु लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अभिमन्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारा साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आईएसएफ जिंदाबाद, 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 इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।